So friends, you might have seen in mostly in metropolitan cities, some big boards at the junctions, road junctions, or at some marketplaces, commercial places, big boards showing the air quality index. Mostly in cities like Delhi, Bombay, Chennai, etc., in metropolitan cities, this air quality index is already displayed for the purpose of awareness of the public. And let me start from here. What is this air quality index? And you see here in my slide, it is shown as 1 to 50, it is good. And it is shown in the green color. So likewise, there are some 4, 5, 6 categories shown from where this air quality index comes. So you must learn this. This air quality index comes from the monitoring of the air quality parameters. Air quality parameters are monitored, and these values are obtained, and each of the parameter have different health effects. For example, sulfur dioxide. For example, particulate matter. Among the particulate matter, there are several further classes like PM10, PM2.5, PM1. What is this? PM10 means particulate matter which is having size equal to or less than 10 micron. Another category is PM2.5. This is particulate matter having size equal to or less than 2.5 micron. Similarly, PM1. So likewise, the different particles of different sizes have different health effects. So while computing this air quality index, particulate matter results of different sizes, again, the gases like sulfur dioxide, nitrogen oxides, ozone, carbon monoxide, and so on. There are several other gases also. And each pollutant has a different health effect. So there is a weightage of the pollutant and the weightage of the parameter. What is the result of that parameter, and what is the gravity of the effect on the adverse effect on the health of the people. So there is a complex calculation based on the results of the parameters and their health effects. This air quality index is calculated, and this is displayed in a simpler way. Only a layman or a simple person, instead of going to read the sulfur dioxide is so much, nitrogen oxides are so much, then he will not understand what is the effect of this nitrogen oxide, what is the effect of the sulfur dioxide. He will not be able to understand because there are several pollutants and different concentrations. So air quality index is a parameter which is a combined, and it directly shows that the value in the number figures like 50, 60, 70, or 200 or 500 microgram per meter cube, and then the gravity of the health effect. How severe this is for the health. So multiplying these two in different weightages, air quality index is displayed for the awareness of the people. They will come to know that today air quality is somewhat better than 4 days or 5 days or a week back. So one can understand this, and he can, if he cannot read it, he can see the colors: green, red, yellow, etc., etc. So air quality index is for the awareness of the public. A layman can also understand. Next slide, please. Can it be shown at the full screen? Because size is quite small.
Can it be shown at the full screen? You can go to slideshow on the top button. No. Can you put it under presentation mode? This is not right now. It is not under presentation mode. Beside the animation button, there's a slideshow button. So there you can present it. On the slide. Okay, anyway, let me continue with this. So I will start from here. What is the importance of air quality? So this I have shown in three points. What I have written: we can live without food for 3 weeks. Even people, human beings can be alive if they do not take food for 3 months also. I am little bit conservative here. I have written only 3 weeks. Saheli, should I speak a mix of English and Hindi, or only English will do? Yes, sir. English and Hindi. That will be a better. तो हम खाना खाए बिना 3 हफ्ते रह सकते हैं और 3 महीने भी रह सकते हैं. ये तो सब लोग जानते हैं. खाना खाए बिना अगर 2 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. Similarly, we can live without water for 3 days. 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम. 3 दिन के बाद आप जिंदा नहीं रहेंगे, डेथ हो जाती है. But we cannot live without breathing. सांस लिए बिना हम 3 मिनट नहीं रह सकते. ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज एयर. The most important is the item which is available 100% free. Food is available at a reasonable cost. Water is again not available everywhere, but air is available everywhere, and that is free. But most important. So we know that the most important item is provided by the God, free and everywhere. So now this air, when we come to the air, now we will discuss the pollution. This pollution, the 3 things are responsible for the pollution in the air, or we can say the deterioration of the air quality. How air quality is deteriorated. What are these things? One is the presence of carbon or dust particles. From where these are coming? Mostly industries. Number 1, industries. Number 2, vehicles which are plying on the roads. The exhaust which is emitting all the time, fine particulates from their exhaust pipes, and gases. Presence of toxic gases, again from the industries as well as from the vehicles. And third item is the deficiency of oxygen. There are some places, there may be some places where there is no pollution, or there is, as such, there is no source of pollution, but remaining live is difficult, may be difficult. What is responsible for that? If we do not get the oxygen. So one is the pollution. Pollution makes us sick. हमको बीमार बना देता है. दूसरा, हमको ऑक्सीजन चाहिए. बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा भी नहीं रह सकते, और अगर ऑक्सीजन कम है तो बीमार रहेंगे. सो एक तो पार्टिकल्स हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, और सफिशिएंट ऑक्सीजन. 3 चीज हमें हमेशा चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब ये जो फाइन पार्टिकुलेट्स हैं, मैंने अपने प्रेजेंटेशन के बिगिनिंग में आपको बताया था. देयर आर 2, 3, 4 डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स.
सो सम कोर्स पार्टिकल्स हम किसको बोलते हैं? कोर्स पार्टिकल्स बोलते हैं जो पार्टिकल्स 100 माइक्रॉन्स एंड अबव होते हैं। 100 माइक्रॉन्स कैसे जानोगे 100 माइक्रॉन्स का साइज कितना होता है? एक जो हमारा एक कॉमन बाल की जो थिकनेस है, जो हेयर है, उसकी थिकनेस 5 to 7 माइक्रोन की होती है, उससे अंदाजा लगा सकते हो। तो 6-7 माइक्रोन का है, तो 100 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद नीचे फिर 10 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। ठीक है। अब जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो उतने हार्मफुल नहीं है। वाई दे आर नॉट हार्मफुल? बिकॉज जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वंस दे आर जनरेटेड मीन्स दे आर लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस। जमीन से जो है वो किसी वजह से उठ जाते हैं, लेकिन वो ड्यू टू द ग्रेविटी दे फॉल डाउन। सो वो हवा में रहते नहीं है और हम लोगों की ब्रीदिंग में वो अंदर जाते नहीं है। तो वो 100 माइक्रोन से अबव वाले होते हैं। उसके बाद जब फाइनल पार्टिकल्स में आते हैं तो वो PM10 पार्टिकल्स हैं या PM100 एंड बिलो वाले हैं। PM2.5 में 1 माइक्रोन एंड बिलो वाले हैं। तो हार्मफुल कौन से हैं? वो हैं जो फाइन पार्टिकुलेट्स हैं। तो पहले क्या था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब स्टैंडर्ड्स बनाए थे, कंट्री के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए थे, तो उसमें SPM करके एक पैरामीटर हुआ करता था। अराउंड 1982-83 दीज स्टैंडर्ड्स वर लेड डाउन। तो वो SPM को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वो पार्टिकल्स कौन से थे? 100 माइक्रोन एंड बिलो। लेकिन लेटर ऑन जो है वो पैरामीटर को हटा दिया गया, उसके नापने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि इन पार्टिकल्स से कोई हेल्थ इफेक्ट, बहुत सीवियर हेल्थ इफेक्ट एज सच नहीं है। उसकी वजह पर, उसकी जगहों पर हमें और 2 पैरामीटर ऐड कर दिए गए, PM10 एंड PM2.5। अभी PM1 की मैं बात करता हूं, लेकिन वो अभी तक हमारे कंट्री में वो स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, बट लाइफ में आगे आ सकता है। तो मैं यहाँ ये जो आपको एक लंग्स का फोटो दिखा रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है कि जो कोर्सर पार्टिकल्स हैं वो या तो आपके माउथ में रुक जाते हैं, या जो ऊपर वाला जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया। वो ट्रैकिया में इसके रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। बट जो उससे फाइन होते हैं 2.5 माइक्रोन एंड 1 माइक्रोन, वो कहाँ तक चले जाते हैं? वो लास्ट का जो पोर्शन होता है हमारे लंग्स का, जहां पर ब्लड का एक्सचेंज, ब्लड के साथ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। लंग्स में क्या होता है? जब हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन आती है, ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है। अब वो जो पार्टिकल्स हैं 1 माइक्रोन के, इतने छोटे होते हैं कि वो उन एल्वियोलाई जो होती हैं उनके थ्रू बाहर अंदर कर सकते हैं। इट मीन्स लंग्स के थ्रू गए और वो ब्लड में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं और कर भी जाते हैं, और उनके बहुत सीवियर हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाना चाहा है कि ये फाइन पार्टिकुलेट्स आर द कल्प्रिट्स फॉर द बैड और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैं ताजमहल का फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि 1980, 82, 83 के दौरान जो है ये सभी लोग तो पैदा नहीं हुए थे, जो लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, बट हम लोगों को पता है एनवायरमेंट वाज स्टार्टेड। एंड उस समय जो है एक प्रॉब्लम आई थी कि ताजमहल पीला होता जा रहा है। उसकी बहुत अच्छी मार्बल थी, वाइट कलर की मार्बल थी, और वो उस समय येलोइश टिंट उसका होता जा रहा था। तब फिर ये सोचा गया कि व्हाट मे बी द रीजन। तो दैट वाज द पीरियड व्हेन पॉल्यूशन स्टार्टेड। उससे पहले उतना पॉल्यूशन नहीं था कि वो जो है रिकॉग्नाइजेबल हो, रिकॉग्नाइज करने लायक हो। होता होगा थोड़ा थोड़ा कहीं पर होता था। तो उस समय ये आइडेंटिफाई हुआ कि वहां पर जो ताजमहल के आसपास, ताजमहल आगरा में है, आगरा के आसपास बहुत सारी फाउंड्रीज हैं, और फाउंड्रीज में कोयला जलाते हैं लोग, और कोयला जलाने से कोयले में क्या होता है? सल्फर होता है, एक क्वांटिटी सम 0.1% से लेकर के 0.5% तक सल्फर होता है। उस जब सल्फर जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कोरोसिव है। वो कोरोसिव है तो वो लाइमस्टोन, जो संगमरमर है, लाइमस्टोन है, उससे वो रिएक्ट करके उसको पीला कर रही है। लेकिन ये भी बाद में गलत साबित हो गया, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि वहां से फाउंड्री बंद कर दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
closed down all the foundries, or they were asked to shift their foundries from Agra to some other place. But the condition of Taj Mahal was not improved. That was the point when the community was again forced to think what happened, what is the reason. Then studies were made, and it was in various studies, it was found that the fine particulate which is having size of around 2.5 micron, it is having fine carbon particles which are of not black color, of brown color. So that brown carbon, brown जैसे सुगर होती है, different aspect में उसको हम लोग discuss करते हैं. Similarly, brown carbon जो थी वो फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर में. वो कहाँ से आती है? जो हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं उनमें व्हीकल्स से जो एमिशंस निकलते हैं एग्जॉस्ट से, वो बहुत फाइन पार्टिकुलेट्स होते हैं, और वो फर्दर जो है एटमॉस्फेयर में और दूसरे गैसेस वगैरह भी रहती हैं, उनके साथ रिएक्ट करके ये फाइन पार्टिकुलेट्स बनाते हैं. तो वो डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकुलेट्स वाज मेकिंग द ताज महल brownish. So this was so this fine particulates are the finally culprit for the tarnishing of the color of the Taj Mahal. Next slide, please. Those fine particles affected the Taj Mahal through acid rain. Yes, fine particulates are affecting the Taj Mahal, and they are discolorizing the marble. Earlier, it was thought that sulfur dioxide is the culprit, but later, when all the foundries have been removed, this process of decolorization of Taj Mahal was not stopped. Then it was found that these fine particulates, 2.5 micron and below, these are penetrating into the small pores of the limestone or sangmarmar, whatever we call. So what was exactly your question? Yes. Hello? Yes, my question is clear. Clear, okay. Now, so I discussed fine particulates. Next parameter is sulfur dioxide. So broadly, I will discuss sulfur dioxide. The main source is thermal power plants. This picture, which in the adjoining slide I am showing, is these are the cooling towers of the thermal power plant, and these two tall stacks are the stacks means chimney from where, when the coal is burnt to produce the steam in turn is used for rotating the turbine, and after burning the coal, this gas emission gas is let out from these tall chimneys. These chimneys have high quantity of sulfur dioxide. So main source, industrial source is sulfur dioxide. For sulfur dioxide is power plant. The main effect on the buildings, on the fabric is it decolorizes the fabric. आपके कपड़ों को पीला कर देती है. जिस भी सरफेस पे सल्फर डाइऑक्साइड टच करती है, वहां पर उसमें कोरोजन, उसमें जंग लगा देती है. सो सल्फर डाइऑक्साइड, थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल सोर्सेज, दूसरे जो जहां पर मेटल रिफाइनिंग होती है वहां से भी जनरेट होता है. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अनदर पैरामीटर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Another pollutant is oxides of nitrogen. How we write it? NOx. NOx means there are several oxides of nitrogen. There is NO, there is N2O, there is NO2. This is a chemical form of the different compounds which nitrogen is forming with oxygen. So we call it NOx. So all these nitrogen compounds of nitrogen, from where these are generated?
the main source, the primary source is internal combustion engine. Internal combustion engine means all the engines which are fitted in our motorcycles, scooters, four-wheelers, cars, trucks, buses, all the vehicles have engines, and they all have internal combustion engine where fuel is fed, oxygen is supplied, and there is a fire inside, and then energy is generated, and our vehicles get energy, and then we are able to drive it. So nitrogen oxides are formed under special conditions. What are the special conditions? Under compression conditions. So in the internal combustion engines, what is happening? There is a high pressure at one point of time. And at that point of time, this nitrogen, usually in the subsequent further, when you will study in higher classes, you will come to know that nitrogen is inert gas. It doesn't react with any of the gas, but it reacts under special conditions with the oxygen. So that is internal combustion conditions में ये फॉर्म होती है. और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अगेन इनके क्या नुकसान क्या है इनके, हमें ये कुछ ये फॉर्म होती है नेचुरली भी. जब थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, तो जब बिजली चमकती है उस समय काफी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट होते हैं. और इसके जो इफेक्ट्स हैं हमारे उस पर, हमारे गले को खराब करती है, नाक में ये आंखों में, नाक में, सब में जलन पैदा करती है. ये सब इसके इफेक्ट्स हैं. थोड़ा सा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे घरों में, किचन में भी हल्के से बनते हैं. हमारा जो स्टोव होता है वहां पर भी हल्का फुल्का बनता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Sir, यस sir, how lightning produce the oxides of nitrogen? Nitrogen and oxygen are the two components of air, main components. Around 20% is oxygen and 80% is nitrogen. This is now, if I go exactly, then it is 19.89% is oxygen and 80% is nitrogen, and remaining 0.01 is the all other pollutants. So our air is mostly consists of oxygen and nitrogen, and there is very high temperature when there is a lightning. So at that very high temperature, which we are not feeling that how much temperature is, the temperature reaches some 2000 degrees of centigrade in that lightning. That's why it looks like blue. So at that particular temperature, nitrogen and oxygen react with each other. Under normal conditions, they do these two gases do not react. That's why the composition of air remains 20% oxygen, 80% nitrogen. But when we talk about that how much it is formed, it will be again part of that 0.01. Nitrogen oxides, sulfur dioxides, carbon monoxide, carbon dioxide, every combined is 0.01%. And this 0.01, we are talking about the 0.01%. These two are not pollutant, nitrogen and oxygen. These are our lifeline. So under that high temperature, it is formed during thundering and lightning, right? Yes, sir. Okay. Understood, sir. Now I come to the carbon monoxide. Carbon monoxide, let me read it from here. Carbon monoxide is colorless, कोई रंग नहीं है, odorless, कोई महक नहीं है इसमें, tasteless, कोई स्वाद नहीं है, and toxic, and is an toxic air pollutant. कहाँ से बनती है ये कार्बन के साथ जब हम कहीं पर भी, चाहे हम अपने गाड़ी में कोई डीजल या पेट्रोल जला रहे हैं, उसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ,
और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए और वाटर वेपर बनना चाहिए। तो वाटर वेपर आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में साइलेंसर से या एग्जॉस्ट पाइप से बूंदें टपकती हैं एक कार के एग्जॉस्ट पाइप से, वो कहां से आ रही हैं? हाइड्रोकार्बन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन फॉर्मिंग CO2 and water. This is the chemical reaction. But what happens? Many a times this oxygen is not supplied in sufficient quantity. So there is a formation of CO, carbon monoxide, in deficiency of oxygen. अगर हम पूरी ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी इंजन को, तो वो CO2 नहीं बनेगा, उसके बीच में एक चीज बन जाएगी, उसको क्या है, क्या बोलेंगे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड. And this carbon monoxide is highly poisonous. So this is one of the pollutant emitted from our vehicles exhaust and all such processes. Monoxide बहुत लंबे समय तक environment में retain नहीं करती है. After some time, it gets converted to CO2 when it comes in contact with oxygen. But immediately in the close vicinity where it is formed, if any animal or any person is exposed to it, I will show you in the next slide, it is very harmful. It is quite toxic. Next slide, please. Sir, Yes. sir, how does carbon monoxide convert to carbon dioxide on reaction with oxygen? How it is converted? CO is converted to CO2. Yes, sir. There are, let me tell you, whatever we are discussing, these are very simple chemistry equations, but in the atmosphere or in the atmosphere or in the environment, things are not so simple. There are several processes by which these pollutants are removed from their place of generation. They are converted in the presence of sunlight. आपने देखा होगा, अगर सनलाइट जिन एरिया में नहीं जाती है, वो उन एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा दिखता है. आपके घरों में भी जहां लाइट नहीं पहुंचती है, वहां एक महक आती है, बट जैसे ही सनलाइट आएगी तो वहां पर वो बहुत सारे ऑर्गेनिक, बैक्टीरियल, फंगल ग्रोथ होती है, उनको मार देता है. सिमिलरली, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकुलेट्स, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती रहती हैं. और उसमें एक है कि प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, 20% ऑक्सीजन अवेलेबल है. इंजन के अंदर तो नहीं थी. इंजन के अंदर तो आप एक कार्बोरेटर के थ्रू एक कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, और वो उतनी ही देते हैं कि जितनी एक इंजन जिस पर डिजाइन किया गया है. तो वहां पर थोड़ी सी कम पड़ सकती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी फॉर्म होती है. इन ऑल द व्हीकल्स इट इज फॉर्म. बट इसकी ब्यूटी यही है कि थोड़े से समय बाद ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद, विद सो मेनी एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस, इट इज कन्वर्टेड टू CO2. तो CO इन जनरल एटमॉस्फेयर में बाद में नहीं मिलती है, बट क्लोज विसिनिटी जहां पर फॉर्म हो रही है वहां मिलती है. अब मैं देखिए आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि नेचुरल एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0.1 ppm. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ परसेंट. 1% is 10,000 ppm. Understand? 1% means 10,000 ppm. So naturally जो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, इट इज 0.1 ppm, 0.00001%. दिस इज द कंसंट्रेशन लेवल. हमारे घरों में कहाँ बनती है? किचन में 0.5 से 5 ppm पाई जाती है. सिमिलरली बिल्कुल जहां पर स्टोव है, बिल्कुल स्टोव के पास, इसलिए आपको हमेशा थोड़ा सा स्टोव से दूर रहना चाहिए. अदरवाइज जो भी आप चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो अदरवाइज यू विल बी एक्सपोज टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. वहां पर भी थोड़ी सी बनती है. Sir, now we have exactly about 20 minutes left. 20 Okay. तो अगर सर आप if you can finish the presentation at the earliest, and if you could also demonstrate the equipment that you have, please. Okay, then I should be little bit fast. Okay. Awesome. Thank you. अब देखिए कि above 35 ppm ये टॉक्सिक हो जाती है. समझ रहे हैं? 35 ppm अगर कहीं पर हो गई
तो ये फिर आपके हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो जाती है। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कार्बन डाइऑक्साइड एज सच पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से कोई हार्म एज सच होती नहीं है, और जो टोटल कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स कंज्यूम करते रहते हैं और दूसरी प्रोसेस से फॉर्म होती रहती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली बनती है हमारे इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Another pollutant is ozone. Ozone कैसे बनता है? Sir, someone raising hand. Excuse me, sir. Am I audible? Due to acid rain. तो मैं इसमें बताऊं व्हाट इज एसिड रेन। मैम आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे हैं एसिड रेन क्या है? मार्बल कैंसर भी इन्होंने एक बोला है। दिस येलोइंग ऑफ मार्बल इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। अब बात लौट फिर के वहीं जाती है। देखिए इंडिया में एज सच कभी एसिड रेन नहीं हुआ है। ये ब्रिटेन में हुआ है, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में एसिड रेन हुए हैं। उसका रीजन ये है इंडिया में एसिड रेन नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो कोल पाया जाता है, जो कोल क्वालिटी है उसमें सल्फर कंटेंट काफी कम है, इसलिए एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड लेवल बहुत कम है। और फिर जब हम नापते भी हैं, जब हम मॉनिटरिंग करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन बहुत कम मिलते हैं इंडिया में। दिस इज ट्रुथ। बट ये बात ठीक है, बट हमारे कंट्री में एसिड रेन न हुआ है और न उसकी वजह से ताजमहल का येलोइंग ऑफ द मार्बल वो पॉसिबल नहीं है। हमारे रीजन यही थे कि या तो सोर्स से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, जो फाउंड्री थी, लेकिन वो फिर हटा दी गई, तो वहां उसके बाद हमें पता चला कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो उसे डिस्कलर कर रहे हैं। दिस इज द आंसर। सो नाउ आई कम टू द ओजोन। ओजोन जो है ये एक पॉल्यूटेंट है। मैं इसको बताता हूँ कि दो तरह की ओजोन होती है। एक तो आपने सुना होगा कि ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। तो वो ओजोन लेयर क्या कर रही है? वो हमें जो सन की अल्ट्रावायलेट लाइट है उसको आने से रोक रही है। उससे क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर आईज, फॉर आवर बॉडी, स्किन, ऑल दैट। तो उसको हम लोग बोल देते हैं गुड ओजोन। और एक ओजोन जो है यहाँ हमारे सरफेस पे बनती है, वो तो नेचुरली अवेलेबल है जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, और ये यहाँ बनती है। ये कैसे बनती है कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे व्हीकल से निकलते हैं, दोनों चीज, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन बनाते हैं। ये ओजोन हार्मफुल होती है। वो तो हमें सनलाइट से बचा रही है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है, बट ये हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये हार्मफुल है, इसलिए इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कंट्री के हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर देखिए 5 दिए हुए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर भी ये साथ टोटल 12 पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं। ये 12 पैरामीटर्स हमारे कंट्री में मॉनिटर करने होते हैं, इनके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इनको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास क्या चॉइस है? चॉइस है हम मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से करें या रियल टाइम एनालाइजर से करें। तो उनके साथ भी कुछ इश्यूज जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द इश्यूज? मैनुअल में हमको लैब फैसिलिटी चाहिए और मैन पावर जो है उसको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मैनुअली काम करना पड़ता है। रियल टाइम में क्या ये चीज नहीं है। रियल टाइम में तो एसी शेल्टर में रख दिया जाता है, वहां पर एक स्टेबलाइज पावर सप्लाई देनी होती है। तो इस तरह ये रियल टाइम वाला है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। और उसके अंदर का जो व्यू है वो ऐसा होता है। ये सब एनालाइजर्स लगे हुए हैं और रिजल्ट सीधे डिस्प्ले बोर्ड पे जाते रहते हैं। बट इसका कॉस्ट जो है बहुत हाई होता है, मे बी 50, 60 लाख, 70 लाख का
कॉस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। और अनदर इशू ये है कि ये हमारे यहाँ बनते नहीं है, इंडिया में नहीं बनते, हमको सब इंपोर्ट करने होते हैं। तो इनके साथ इनके मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, स्किल्ड मैन पावर के इश्यूज हैं। अब हम लोग यहाँ ज्यादा जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैनुअल सैम्पलर्स के बारे में। तो मैनुअल सैम्पलर्स मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, जो हमारे गवर्नमेंट ने 12 पैरामीटर बनाए हैं वो क्या है, PM10, PM2.5, SO2, NO2, अमोनिया, ओजोन, ये लेड है, ये आर्सेनिक है, ये निकेल है, बेंजो ए पायरीन, BAP शॉर्ट में लिखा है, बेंजीन, ये कहाँ से आता है, जब हम पेट्रोल डीजल डलवाते हैं अपने व्हीकल में तो उसमें जो अनबर्न्ड रह जाता है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स। और इनके लिए हमें कौन से मैनुअल, ये है सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। RDS रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर मींस PM10 के लिए, PM2.5 के लिए PM2.5 सैंपलर, ये सब गैसेज हैं ओजोन तक, इनके लिए गैसेस अटैचमेंट चाहिए होते हैं। ये हैवी मेटल हैं 3, लेड, आर्सेनिक एंड निकेल, इनके लिए हैवी मेटल सैंपलर से सैंपलिंग हो जाती है, फर्दर लेबोरेटरी में एनालिसिस होती है। बेंजोएपायरीन के लिए सैंपलिंग हाई वॉल्यूम सैंपलर से होती है, जो मैंने इनिशियली बताया था, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। बेंजीन के लिए एक ऑर्गेनिक वेपर सैंपलर होता है, उससे सैंपलिंग हो जाती है एंड फर्दर लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है सैंपलिंग करके एनालिसिस मतलब ऐसे नहीं होती है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो NDIR है, कॉम्प्लेक्स है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। उसके टेडलर बैग में सैंपल ले लेते हैं, हैंडी सैंपलर की हेल्प से उसको भर लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं 1 बाय 1 ये दिखा रहा हूँ। हाई वॉल्यूम एयर सैंपलर, देखिए मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ इसका। अभी थोड़ा सा कनेक्ट कर देंगे, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन टीम हाई वॉल्यूम सैंपलर को दिखा देगी। सर हमारी जो टीम है वो एक्चुअली एक दूसरे कैमरे पे वो इंस्ट्रूमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर कैसे लिंक करेंगे भाई? होस्ट ही हो सकता है, यहाँ से शेयर का ऑप्शन तो आ रहा है, होस्ट उधर से अलाउ करेगा तो शेयर। और नहीं तो मैं इसी में दिखा दूंगा। लैपटॉप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसका कैमरा आ गया हो सकता, इज इट पॉसिबल टू शेयर ऑन अनदर कैमरा? कैन यू शो ऑन द सेम स्क्रीन? हमारे वहां शेयर कर लें हमारी टीम। Sir, am I audible? Yes, yes, I'm hearing you. Sir, I have a question. Yes. Sir, do this gas causes the photochemical smoke? Photochemical smoke. Yes. How it is formed? In fact, photochemical smoke is these are the very fine particulates suspended in the air. This moisture during the winter season, the moisture gets condensed over those particulates. It forms the smoke. So that is the process. And there are several photochemical reactions continuously going on in the atmosphere. This is a continuous process which always goes on. So many chemicals are converted to some other chemicals, and those, for example, if there is sulfur dioxide, it is converted with the atmospheric reactions into sodium sulfate or potassium sulfate, and these are the particulates, and these are very fine particulates. These get stuck on the other dust moisture droplets. That is called photochemical smoke. Okay, sir. So is it possible to share our demonstration team? हो गया? So Excuse me, sir. so this is the high volume sampler. How sampling is done? We will show you that. Now can I see my PPT also? No. Excuse me, sir. Yes.
Sir, am I audible? Yes, I'm hearing you. Yes, sir. So my question is, Yeah. as you earlier said that near the stove, the nitrogen oxide produced in Yes. some quantity. Then does it also affect our food? Our The food. food. Yes, Na- sir. Food, not directly, but nitrogen oxides up to some extent, they are harmful for the plants and vegetation, but not very much. Sulfur dioxide is very harmful, but nitrogen oxide is directly harmful for the human being and animals. Not as such nitrogen oxide. Sulfur dioxide is much more harmful. Okay, students, time is very short. Please ask your question after the presentation. So what तो मेरे ख्याल से पांडे जी ने इसी को कंप्लीट कर दिया है ना, वो हो नहीं पाएगा अदरवाइज. सो सहेली, मैं अपना पीपीटी कंप्लीट कर देता हूँ. आई थिंक सो. सो as I told you that high volume air sampler, which was shown there in my previous slide, that is for sampling of suspended particulate matter. And this is the next sampler, which is for the sampling of PM10 particulates. Okay, how it samples, I will show you. Next slide, please. It looks like this. Next slide. Simple principle is same principle is in the high volume air sampler, only a little difference is in the sample inlet. Here you see in the respirable dust sampler, air enters from here. There is a cyclone assembly. What is the purpose of the cyclone? This cyclone separates particles of 10 micron from the air. So bigger particles are separated here, and only 10 micron and below, there is a pump here. It is sucking from here. So the finer particles, they go like this, and there is a filter paper put here. So finer particulates are deposited on the filter paper. So what we do, we initially take the initial weight of the filter paper, and we run this machine for maybe 8 hours, 12 hours, or 24 hours. And after that, we again weigh it. I will, next slide, please. And for that, there in the respirable dust sampler, we want to know the total volume of air in 8 hours or 12 hours. So for that, there is a time totalizer for how long the instrument was run, and there is a manometer showing the flow rate. Two things are there like this. Next slide. This is the top of the instrument. Next slide. Filter paper placement. I will show you. Yeah. Next slide. Next slide. Yes. So this is the lid. You have to open it like this. Place a filter paper over here. And this filter paper is pre-weighed. We have taken the initial weight of the filter paper. Next slide. Next. Next. This is the filter paper. Next slide. Next slide. So you have to put it like this. Next slide. And then again, close the lid. And now your instrument is ready. Switch on the instrument. Let it run for certain time. Usually it is 24 hours running time. And then remove the filter paper. And you will find that there a lot of dust is deposited over the filter paper. Next slide, please. So what you have to do, you have to take, you have taken the initial reading of this time totalizer, and now there is a final reading of this time totalizer. The difference of two will give the total time run by the machine. And there was an initial flow rate in this machine,
and after completion of the sample, maybe flow rate might have reduced somewhat, so you will take the final reading of this manometer reading. Next slide. Next. Now I am showing you the calculation. What we will do next. Please continue. I will tell them. So initial weight of filter paper हमने एक ले लिया, इनिशियल टाइम टोटलाइजर की रीडिंग ले ली थी, इनिशियल हमने फ्लो की रीडिंग ले ली थी। इसके बाद क्या हुआ, जब 24 घंटे मशीन चला दी, फिर हमने से 8 घंटे चलाई मान लो, आफ्टर 8 आवर्स हमने फाइनल टाइम टोटलाइजर की रीडिंग ले ली T2, फाइनल फ्लो रेट की रीडिंग ले ली F2, ये मीटर क्यूब में है जो मैनोमीटर है, और फाइनल वेट हमने फिर से उसको वे कर लिया वेइंग बैलेंस पे, उसका वेट W2 आ गया। नेक्स्ट, यस, नाउ हमें क्या है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि कितनी डस्ट फिल्टर पेपर पे आई है। नेक्स्ट, वो कैसे होगा, और सेकंड हमें क्या करना है कि हमने कितनी देर कितना एयर पास की है, ये दो चीजें निकालनी है। कैसे करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। थर्ड सर अभी अपने पास 10 मिनट और बाकी हैं जी, तो जस्ट अ जनरल रिमाइंडर। थैंक यू सो मच। ओके, 10 मिनट्स। सो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट हमने ये ले लिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, और एवरेज फ्लो रेट हमारा हो जाएगा F2 प्लस F1 डिवाइड बाई 2, एवरेज हो गया। एंड टोटल टाइम ऑफ सैंपलिंग आवर्स में आ गया हमारा वहां पहले, और इसको हमने अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हमारा फ्लो आ जाएगा मिनट्स में। टोटल टाइम जो है मिनट्स में हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको किस में करना होता है, इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वेट का डिफरेंस हो गया, उसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों कि हमको ग्राम्स को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना था, और इसको डिवाइड बाई कर दिया एवरेज फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम इन मिनट, T2 माइनस T1 इंटू 60, टाइम इन मिनट। नेक्स्ट, सिमिलरली हम लोग ये PM 2.5 का मशीन है, इसको हम लोग बोलते हैं PM 2.5 सैंपलर। इसका फ्लो रेट फिक्स रहता है, बाकी चीज सेम है। फिल्टर पेपर इसमें और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो ऑल डायरेक्ट डिस्प्ले होता है, इस तरह का डिजिटल डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, ये इसका स्कीमेटिक है, सेम चीज है, इसमें यहाँ पर फिल्टर पेपर लगता है। अच्छा, इसके अभी हमने पार्टिकुलेट कर लिए, अब आते हैं गैसेज के लिए। तो गैसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैसियस सैंपलिंग अटैचमेंट। इन दोनों जो मशीन हमने दिखाई, इनमें एक अटैचमेंट लगा सकते हैं ऐसा। ये अटैचमेंट में क्या है, ग्लास के इम्पिंजर बोलते हैं, इनमें रिएजेंट रख देते हैं, और एक सर्टेन फ्लो रेट पर वो गैस को हम बबल कराते रहते हैं। तो जितनी देर पार्टिकुलेट की सैंपलिंग हुई उतनी देर गैस भी इसमें बबल होती रहती है, और वो जो रिएजेंट है वो उसके साथ रिएक्शन करते रहते हैं। अच्छा, ये एक दूसरे तरह का अटैचमेंट है। इसमें क्या है, इसका हमने एक नाम दिया है APM 411T। इसमें क्या है कि अदरवाइज आपको आइस रखनी पड़ती है इनको रिएजेंट्स को कूल रखने के लिए, बट इसमें क्या है कि थर्मो इलेक्ट्रिकली, TE मीन्स थर्मो इलेक्ट्रिकली ये कूल रहता है। नेक्स्ट, अभी मान लीजिए आपको पार्टिकुलेट नहीं करना है तो अटैचमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। वहां क्या होगा कि आपको अटैचमेंट लगाएं और बड़ी मशीन को लगाना पड़ेगा, बट खाली गैस करनी है तो एक सेपरेट मशीन भी होती है जिसमें सब चीज लगी है, पंप लगी है, टाइम टोटलाइजर लगा है, टाइमर लगा है। अच्छा, जो हैवी मेटल्स हमने डिस्कस किया था उसके लिए एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, हैवी मेटल्स के लिए उसको हैवी मेटल सैंपलर बोलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, एक वर्क प्लेस एरिया में करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है पर्सनल डस्ट सैंपलर। इसमें क्या है आप देख रहे हैं, छोटा सा है, इसका वेट जो है अराउंड 0.45 kg होता है, और छोटा बैटरी ऑपरेटेड मोटर होता है, पंप होता है, और इस तरह से इसमें एक फिल्टर पेपर लग जाता है, और ये बेल्ट पे वर्कर बांध लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि वर्कर जब वो 8 घंटे शिफ्ट में काम कर रहा है तो उस कितनी डस्ट आ रही है। बाकी प्रिंसिपल सेम है, इनिशियल फिल्टर पेपर का वेट ले लेते हैं, फाइनल ले लेते हैं, और टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये हैंडी सैंपलर है। मान लीजिए वर्क प्लेस पे हमको खाली गैस नापनी है, तो ये गैस भी 2 इम्पिंजर्स में गैस ले ली, ये ले लिए हमने केमिकल्स, और यहाँ फिल्टर पेपर लगा दिया।
ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसको हैंडी सैंपलर बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आ रहा है कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके लिए क्या होता है कि ये एक VOC सैंपलर है इस तरह का, इसमें भी डिजिटल डिस्प्ले है, और ये एक्टिवेटेड चारकोल में एडसॉर्ब किया जाता है। ये ट्यूब्स हैं, 2 ट्यूब दिखाई गई हैं, ये यहाँ पर लग गई, ये लगा दी, ऊपर एक फिल्टर लगा देते हैं, इसमें एडसॉर्ब हो जाती है। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, कितनी देर कितनी एयर सक की है, टोटल वॉल्यूम मिल जाता है, और इसको लेबोरेटरी में फिर गैस क्रोमैटोग्राफी एनालिसिस करते हैं। एक और पैरामीटर था कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हैंडी सैंपलर की हेल्प से इसमें भर लिया, इसको बोलते हैं टेडलर बैग। दिस इज टेडलर बैग्स 1 2 3। इस टेडलर बैग से जो हमारा कंटिन्यूअस एनालाइजर है, वहां पर CO एनालाइजर होता है, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एनालिसिस होती है इसकी। नेक्स्ट, और क्या होता है इसमें मॉनिटरिंग में, एक मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं नापना। थोड़ा सा बैक स्लाइड मिल जाएगी, थोड़ा सा बैक। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये विंड स्पीड के लिए, डायरेक्शन के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, वो सब चीजें इससे मेजर करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी एनवायरमेंटल स्टडी में यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, तो मैंने अभी 2 कैटेगरी आपको बताई थी, मैनुअल सैंपलर्स की बताई थी और एक कंटिन्यूअस एनालाइजर्स की बताई थी। तीसरी कैटेगरी ऑफ मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती है लो कॉस्ट सेंसर बेस्ड ऑनलाइन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये बट इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनमें डायरेक्ट डिस्प्ले आ जाता है, ये सब आ जाता है, बट इनको जो है गवर्नमेंट ने उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि इनका डेटा किसी रेगुलेटरी पर्पज के लिए यूज किया जा सके। ये इंडिकेटिव है, ये कोई अपना नॉलेज के लिए, कुछ अपनी स्टडी के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट ये स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए ये फुलफिल नहीं करते हैं। देखने में तो आसान लगते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक और एटमॉस्फेयर में रहता है हमें साउंड मेजर करना, साउंड लेवल। तो ये साउंड लेवल मीटर है जिसमें डेसिबल्स में हम लोग नापते हैं। आजकल बहुत साउंड पॉल्यूशन का भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो साउंड लेवल मीटर होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब आप लोग कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। यस, मेरा एक था, साउंड पोल्यूशन कैसे हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए? एनवायरनमेंट के लिए आप ऐसे सोच के रखिए कि आपके रूम में बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, गाना नहीं चल रहा, गाने को तो आप एंजॉय करते हो, लेकिन कोई धड़ाम धड़ाम इधर से उधर चीजें गिरा रहा है, तो आप क्यों इरिटेट होते हो ना इरिटेट? क्या हो रहा है, क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो ईयर ड्रम है वो एक सर्टेन साउंड के लिए ही बना हुआ है कि वहां तक तो ठीक करता है। अदरवाइज आप बहुत लंबे समय तक उसमें एक्सपोज होंगे उस साउंड के लिए, तो बाद में पेन शुरू होगा, और बाद में वो जो ड्रम है, जो उसका डायफ्राम है, वो डैमेज होने के भी चांस होते हैं। तो आजकल नॉइज की समस्याएं काफी ज्यादा हो गई हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ। पहले उतना नहीं था। जो आप डीजे जो है कुछ समय सुन सकते हो, रोजाना कंटिन्यूअस आप डीजे सुनोगे तो उसके हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं। साउंड इस तरह से हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। हेडेक होता है, ज्यादा साउंड ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोज होते हो, इट इज हार्मफुल फॉर द एनिमल्स, इवन फॉर प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, ऐसा भी देखा गया है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर प्लांट्स के लिए कैसे? देखिए वो मैं बता रहा हूँ कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। ऐसा देखा गया है कि एक प्लांट को अगर आप मतलब सेम न्यूट्रिएंट्स देकर के सिमिलर कंडीशंस में रखते हैं, तो जो ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट जो है, जो बहुत नॉइजी एरिया में रखा गया था, उसकी कम होती है ग्रोथ रेट कंपेयर टू। तो इस तरह से देखा गया है। वो बोल तो सकते नहीं है, दे कैन नॉट टेल यू कि मैं परेशान हो रहा हूँ, ग्रोथ रेट कम हो जाता है, ऐसा देखा गया है। इट इज ऑब्जर्व। स्टडीज आप लोग करिए स्टडीज। अब आप लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो इस तरह की, मैं तो आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ,
and you get try to make these as projects and do in your life. Yes. Yes, sir. Sir, can you please explain the Röntgen for men? Please repeat the question. Sir, REM, Röntgen for men. ये क्या है? तो से रेडियो एक्टिविटी जो ये है ना उसके रेडियो एक्टिविटी का मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ. रेडियो एक्टिविटी देखिए उसके तो इफेक्ट दूसरे हैं. वो तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हाईली हैजार्डस है, हाईली हैजार्डस. तो वो अलग इफेक्ट है. उसमें से जो रेडिएशन निकलता है अल्फा बीटा गामा, वो तो आपको जेनेटिक डिफॉर्मेशंस कर देता है, उस तरह के इफेक्ट है. बट वो पॉल्यूशन तरह से नहीं मिलता है. वो तो कहीं से लीकेज होगा तब मिलेगा, या जहां पर कुछ एरिया होते हैं जहां पर इनके ओर्स पाए जाते हैं, रॉ मटेरियल, जिनसे प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम वगैरह को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. उन एरियाज में कुछ रेडिएशन मिलता है, तो वहां पर बैरिकेडिंग की. 5 मिनट में अब हम लोग मेन सेशन में चले जाएंगे. सो 5 मिनट में रैप अप कर दीजिएगा प्लीज. थैंक यू जी. मेरा तो प्रेजेंटेशन तो ओवर हो ही गया है. श्योर सर, बस 5 मिनट में आप अपना रिकैप कर लीजिएगा. थैंक यू. हाँ, तो मुझे इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. आस्क व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड. सर एयर को क्लीन रखने में हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना? एयर को क्लीन करने के लिए? यस सर. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि बहुत बड़ी समस्या है. आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है किसी भी सिटी में, अभी भी आप देखते हैं कि जो हमारे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, सब में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है. और इसको कम करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब तक लॉकडाउन नहीं होता है तब तक ये कम नहीं होता है. यानी कि आपको अपनी लाइफ जो है ना रोक देनी पड़ेगी. आपको इंडस्ट्री नहीं चलानी है, आपको अपनी गाड़ियां नहीं चलानी है, ठीक है ना. अदरवाइज किसी कंट्री में पॉल्यूशन नहीं रोक रहा है. हाँ, आप दूसरे कंट्रीज में रीजन ये है कि वो लोग वो क्लीन है, उनकी पॉपुलेशन हमसे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स लेस है. और हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी उतनी अच्छी अभी नहीं है. एक तरीका है कि थोड़ी टेक्नोलॉजी और हम लोग इम्प्रूव करें, और जो हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको एट ऑल अपने कंट्री में अलाउ नहीं करें. और अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव जब तक नहीं लाएंगे, ये कंज्यूमरिज्म को हम लोग बढ़ावा देते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग पॉल्यूशन कम कर पाएंगे. कम करने का कुछ नहीं, ये है कि रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए आप अपने थोड़ा सा बेटर टेक्नोलॉजी वाले, जैसे अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स ले आवें, या गैस से चलने वाली बसेस, कारें चल रही हैं, तो थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं. बट आप देख रहे हैं खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो एडिशन ऑफ व्हीकल्स हो रहा है वो उससे ज्यादा हो रहा है. जितना हम इधर कम करते हैं उससे ज्यादा नंबर बढ़ जाता है. ये सब रीजंस हैं. तो नॉट सो सिंपल टू रिड्यूस द पॉल्यूशन. रिड्यूस के लिए तो आपको एक्टिविटीज बंद करनी पड़ेगी, जो हुआ था उसके टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, सभी क्लीन हो गए थे. तो आप बस समझ लीजिए वही एक जरिया बचा है, और कोई जरिया नहीं है, और वो पॉसिबल नहीं है, उसे कर नहीं सकते हम लोग. लाइफ रुक जाएगी पूरी. सर ये AQ मॉनिटर्स जो है वो हमारी कंट्री में मतलब पूरे फैले हुए नेटवर्क है? अच्छा. हाँ. देखिए नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क 2 तरह के फैले हुए हैं. एक तो जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके पूरे कंट्री में करीब 1000 से ज्यादा जो है जगहों पर लगे हुए हैं, और इनको जो मैनेज करते हैं या चलाते हैं, ये काम जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दे रखा है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को. तो मैनुअली सैंपलिंग करते रहते हैं, डेटा जनरेट करते रहते हैं, और रिजल्ट्स आते रहते हैं. और दूसरे जो है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, जो मैंने दिखाया, स्टेशन दिखाया था बड़े वाले, जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के हैं, वो स्टेशन भी जैसे दिल्ली में अभी 30-32 लग गए हैं.
दिल्ली एनसीआर वगैरह में, सिमिलरली जो बड़े बड़े सिटीज में 10, 15, 20 करके, तो वो करीब करीब वो भी 1000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो उनसे डेटा आ रहा है, उनसे आपको AQI का डेटा मिलता रहता है, दिल्ली का AQI, हैदराबाद का, बेंगलोर का AQI, चेन्नई का AQI, वो उन्हीं से मिलता है जो कंटिन्यूअस एनालिसिस वाले हैं। उनको बोलते हैं हम लोग CAAQMS, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, CAAQMS। बट वही है कि उनका मेंटेनेंस कॉस्टली है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, 50-60 लाख है। मेंटेनेंस डिफिकल्ट इसलिए है कि इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स आते हैं, बाहर से नहीं आएंगे तो बंद हो जाता है, तो सब में दिक्कतें आती हैं। तो पैरेलल जो है, मैनुअल सैंपलर्स भी पैरेलल चल रहे हैं, और ये 2 ही टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड है। तीसरी जो मैंने बताई लो कॉस्ट सेंसर बेस्ड, वो रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यूज हो रही है। मान लीजिए, अब देखिए दोनों में क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक है आपको जो थोड़ा सा वजन है, 50 किलो 30 किलो का इंस्ट्रूमेंट है, जगह एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन हैवी है। दूसरा जो कंटिन्यूअस वाला है वो स्टैटिक है, वो एक ही जगह पे रहता है, वो कहीं मूव नहीं हो सकता है। अब मुझे करना है कहीं पर ऐसी जगह पे जाके मॉनिटरिंग, मुझे आज का डेटा चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्लेस पे आज ही मुझे रिजल्ट भी चाहिए, तो वहां के लिए कौन सा काम कर देता है, जो लो कॉस्ट सेंसर बेस्ड है, तो इंडिकेटिव डेटा मुझे मिल जाता है उससे। तो हर तीनों तरह की टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन अलग अलग है, तीनों की एप्लीकेशन है, बट 2 रिकमेंडेड है, एक अभी इन दी प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन है, अभी एडॉप्ट हुआ नहीं है, बट प्रोसेस चल रही है कि उसको किस तरह से इम्प्रूव कर लें, क्वालिटी इम्प्रूव कर लें, उसका जो डेटा जो प्रोड्यूस होता है उनको बेटर कर लें, उनका जो टेक्नोलॉजी है उसको और बेटर करके, रिफाइनिंग करके, ये सब चल रहा है। जी यस सर। सर, तो लगभग हर सिटी में अभी वो मॉनिटर्स लगे हुए हैं? हाँ, बड़े सिटी में सब में है, टायर 1 टायर 2 सिटीज में सब में है, और टायर 1 टायर 2 मतलब टायर 1 में तो मेट्रो सिटीज आ गए, फिर जितने बिग सिटीज है सब में आ गए हैं, और जो टायर 3 सिटीज हैं उनमें भी अब लगाने का चल रहा है, बट यही है कि उनका ऑपरेशन मेंटेन। I hope everyone had a fantastic session. A lot of thanks to all our trainers who've taken the time out to be with us, and a very warm thank you to all our very warm thanks for all our to all the students, especially a lot very nice contribution from multiple students from many schools that have come, and बहुत students आप लोग को select किया गया आपके school से, so that आप लोग ये सीखें और अपने और students को सिखाया जाए. So we had kept a cap of about roughly within 10 students per school, or even there are some colleges that have come, so some colleges, so 10 students per school or college. So I hope all of you can learn this, take it back to various sessions that you've learned, take it back to their community, take it back to your school, institution, college, and community. With that, I would like to give a very, very warm thanks to Sajal, Shri Sajal Roy, who did this session on how to retrofit an electric cycle. A very, very warm thank you to Dr. Balbir Singh, who showed how air quality monitor works. Shri Anshuman Das, who talked about indoor air plants. Mrs. Lata Bhatia, who talked about composting, how we can take care of our waste at home. And solar lights, we had my colleagues Imtiaz and Mrityunjay, who talked about how a solar light can be assembled and put together and can be taken care of. So I'd like to go to all of our trainers before I come and open up the conversation for a few comments. We have about 10 minutes to do a quick debrief and recap. For some of you who don't know, I'm Vinay Jaju. I'm with Switch On Foundation. Once again, a very, very warm thanks to all our trainers. So Sajal da, agar aap kuch in a few minutes, agar aap kuch kehna chahe, if there are a few words that you would like to say, I hope you're with us right now. And if there's a few words that you'd like to talk about, especially the importance of cycling and how electric cycle can be a very important technology for the future.
Okay, so maybe Divyangana Di, can you switch on your speaker, and if such I'm a cycle lover. I used to make mainly custom cycles, the pedal cycles. Electric cycle I also made before. Nowadays I'm not making it. Yeah. So on your request, I'm doing this. But it is not so hopeful, I think. This is my personal opinion. Pedal cycle is the best. The best is pedal cycle. You can see my workshop. There is so many pedal cycles. It's my own build, my own creations. Thank you so much. A custom bike gulo ekটু দেখা. Thank you so much. आपका हम देख रहे हैं workshop. There's so much love in that workshop. It's fantastic to see, and I personally am a huge believer of pedal cycling. Thank you so much. But of course, we also understand कि बहुत सारे लोग हैं जो अब they've started to look at how electric cycles can be used, and many people are looking to also for work. A lot of people are looking for No, I'm not discouraging the electric cycle. But I love pedal cycle. Sure, Cyclist, I love pedal cycle. Electric cycle also okay. It's all right, no problem. But I like pedal cycles. You can see my workshop. There is so many pedal cycles. All is my own, my personal one. I used to ride every day these cycles. Dr. Balbir Singh. Dr. Balbir Singh, if you can hear me, we'd love to hear your few words from you. This motor can not run for long way. So, Dr. Balbir Singh, if you can Latadi, you're with us. Yeah. Latadi, if you want to come in and share a few thoughts with all the things you've gathered now today. So waste is being generated across the city by each one of us. I feel that it's high time each of us should take care of the waste that we generate, reduce the amount of waste we generate, and also manage our waste at source, that is our homes. A lot can be done, and if each of us take that responsibility, I think a major crisis can be averted. A very major crisis can be averted. Thank you so much, Latadi. Anshumanda, if you would like to share a few thoughts, please. Yeah, so I enjoyed thoroughly, but I was also missing if I could see all the faces and interact with them physically in a physical meeting. And I mean, one sentence I want to share with all of you is plants are going to be the hope for the future. So plants are the only thing which can help us, which can help the world to survive. So it is best we make friendship with plants, not only enjoying plants outside, but we can also bring them in. We can actually talk to them, and we can feel them, and they can feel us very well. So let's make friendship with plants. Yes. Thank you, Vinay, for this opportunity. Thank you so much, Anshumanda. And lastly, Dr. Balbir, if you can unmute yourself, if you'd like to say a few words. I think Dr. Balbir is with us, but I believe we're not able to connect with him. But Yes. We can hear you, sir. Yes. So in fact, we are making we are presenting such talks at several places, and these presentations were normally given to our customers. But in this case, when I was very much excited when I came to know that this session about air quality monitoring
will be for the children. As these are the future of my country, I will say, children, there is nothing shortcut in the life. Please, when you study the environment, please go to the basic techniques, basic principles of environment, and try to learn from the grassroots, chemistry, physics, biology, and then switch on to the selecting a particular instrument technology. Just doesn't jump to a instrument which is just displaying some results. You must know how these readings are coming on this instrument. You must know the principles. So my concern is you should learn the basics and then select the instruments and try to generate some similar devices or better devices, which presently we are having. They are very simple devices. So this is my deliberation. Yeah. Thank you.